अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। महबूब नगर के तालीमी इदारों में मारूफ इदारा हीरा मॉडल हाई स्कूल। यहाँ पर हर साल तलबा 10वीं जमात में आला निशानात हासिल करते हैं। कम फीस में आला तर्ज तालीम दी जाती है। तजुर्बेकार टीचर्स व स्टाफ मौजूद है। यहाँ पर तालीम हासिल किए हुए तलबा कई आला ओहदों पर फायज है। आज ही अपने बच्चों को हीरा मॉडल हाई स्कूल में एडमिशन दिलवाकर उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ होने वाले जलसे को कामयाब करने की साबिक़ अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़ व BRS कायदीन की अपील। महबूब नगर शहर के न्यू टाउन में वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में साबिक़ अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन व BRS रियासती सेक्रेटरी इम्तियाज़ इसाक़ ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 25 तारीख को बाद नमाज मग़रिब महबूब नगर के बॉयज़ जूनियर कॉलेज ग्राउंड में वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसा मुनक़्क़द किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने मुत्तहदा ज़िले के BRS कायदीन से अपील की कि वो इस जलसे में बड़े पैमाने पर शिरकत करके कामयाब करें। इस बिल को पार्लियामेंट में पास होने के लिए चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार ने मदद की है, जिसकी उन्होंने मजम्मत की। आने वाले दिनों में मुसलमान चंद्रबाबू नायडू को सबक सिखाएंगे। महबूब नगर रुकन पार्लियामेंट DK अरुणा JFC के रुकन होकर इस बिल को पास करवाया है। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि कायदीन एक ही पार्टी में नहीं रहते। इस वक्त तरमीमी बिल को वापस लेने तक BRS पार्टी की जानिब से जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस मौके पर दीगर BRS कायदीन ने भी खिताब करते हुए वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ मुनक़्क़द होने वाले एहतजाजी जलसे को कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर BRS कायदीन अक़लियती टाउन सदर मोहसिन, नईम, इमरान, अहमद सना, सैयद सुल्तान, दानिश, हाफिज इदरीस सिराजी, इब्राहिम, सिद्दीक हुसैन, जहांगीर, हारून रशीद, समीर, नूरुल्लाह खान, आबिद, खदीर, आरिफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। BRS పార్టీ మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షుడు మోసిన్ గారు, జడ్చల్ల మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ దానీష్ గారు, BRS పార్టీ నాయకులు అహ్మద్ సనా గారు, జామియా మస్జిద్ సెక్రటరీ గారు, మరియు ఇమ్రాన్ గారు, హాఫీజ్ ఇద్రీస్ గారు, హారూన్ గారు, సిద్దీక్, జహాంగీర్ అండ్ ఇబ్రాహిం, నూర్ మేమంతా ఈరోజు BRS పార్టీ ఆఫీస్లో ప్రెస్ మీట్లో మేము BRS పార్టీ 25 తారీఖు జరగబోయే ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డ్ ఆధ్వర్యంలో ఒక బహిరంగ సభ బాయ్స్ కాలేజ్ గ్రౌండ్లో, ఈ సభకి BRS పార్టీ పూర్తిగా మద్దతిస్తుంది. మహబూబ్ నగర్ పాత జిల్లాలో ఉన్న మొత్తం BRS పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఈ సదస్సుకు వచ్చి సక్సెస్ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. BRS పార్టీ బీజేపీతో పాటు అలయన్స్ ఉన్న TDP కానీ, నితీష్ కుమార్ పార్టీ కానీ మద్దతు ఇచ్చి వక్ఫ్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2025కి బిల్ పెట్టారో దాన్ని ముస్లిమ్స్కి పూర్తిగా వ్యతిరేకం ఉన్న బిల్ అది. భారతదేశంలో ఉన్న వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం బీజేపీ గవర్నమెంట్ ముస్లిమ్స్ దగ్గర నుంచి గుంజుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ బిల్ తీసుకొచ్చింది. 10 సంవత్సరాల నుంచి అనేక బిల్స్ ముస్లిమ్స్ వ్యతిరేకం తీసుకొచ్చిన ఘనత ఇది బీజేపీ గవర్నమెంట్కి ఉంది. కానీ వక్ఫ్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 2025 ఏదో బిల్ పెట్టిరో ఆ బిల్కి చంద్రబాబు నాయుడు మద్దతు ఇచ్చి చాలా పెద్ద తప్పు చేశారు. రాబోయే కాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్క మైనారిటీ ఓటు కూడా తీసుకోలేడు. ఆయన బతికినంత కాలం TDP ఉన్నా, చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కొడుకు నారా లోకేష్ ఉన్నా కూడా మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి కాలేరు. రాబోయే కాలంలో ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మైనార్టీ సత్తా ఇవ్వదు, చంద్రబాబు నాయుడు చూపెడతాము. బీజేపీ గవర్నమెంట్కి ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు ఆ బిల్కి మద్దతు ఇవ్వకపోతే ఆ బిల్ పాస్ అయ్యేది కాదు. కానీ చంద్రబాబు నాయుడుకి ఎంతోమంది చెప్పినా ఆ బిల్కి మద్దతు ఇచ్చి ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్న మా దర్గాలు కానీ, మస్జిద్లు కానీ, మా గ్రేవ్యార్డ్స్ కానీ ఎన్ని ఒక ప్రాపర్టీస్ ఉన్నా ఆ ప్రాపర్టీస్లో ఎట్లా డ్యామేజ్ చేయాలి, ఆ ప్రాపర్టీస్ ముస్లిమ్స్కి ఎట్లా గుంజుకోవాలనే ఉద్దేశంతో బీజేపీ ఈ బిల్ తీసుకొచ్చింది. మద్దతు ఇచ్చిన మరియు బీజేపీ పార్లమెంట్ మెంబర్ ఈటికిలి DK అరుణమ్మ
బీజేపీ మెంబర్ ఆ కమిటీకి మెంబర్ ఉన్నా పూర్తిగా మొదటిది కదా. లైఫ్ లాంగ్ మీరు బీజేపీలో ఉంటే ఓకే, అదర్వైజ్ మీరు రేపు రాజకీయ నాయకులు ఎప్పుడే పార్టీ మాట్లాడో తెలియదు. ఒకవేళ మీరు బీజేపీ పార్టీ ఇచ్చిపెట్టి వేరే పార్టీ వచ్చినా అప్పుడు ముస్లిమ్స్ అంతా ఏమో చూపెడతాం. ఎందుకంటే ఇది పూర్తిగా ఈ బిల్కి వ్యతిరేకం. భారతదేశంలో ఎంత పెద్ద మొత్తంలో మీటింగ్లు అయితే ఈ బిల్కి వ్యతిరేకం చేస్తున్నామో ఖచ్చితంగా భారతదేశంలో ప్రతి మైనారిటీ ఖచ్చితంగా ఈ బిల్కి వ్యతిరేకం మేము పోరాటం చేస్తాం. భారతదేశంలో గవర్నమెంట్ ఒకవేళ ఏదో బిల్ పెడితే దానికి నచ్చకపోతే వ్యతిరేకం చేసే హక్కు మాకు ఉంటుంది. ఆ హక్కుకు మేము ఖచ్చితంగా పోరాటం చేసి ఆ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఆ బిల్ వాపస్ తీసుకునేంత వరకు మేము ఖచ్చితంగా పోరాటం చేస్తాం. ఈ సభని సండే సభ 25th May బాయ్స్ జూనియర్ కాలేజ్లో ఈ సభ పూర్తిగా సక్సెస్ చేయనికే ప్రతి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు కష్టపడి ఈ మీటింగ్కి రావాలి. ఎందుకంటే మహబూబ్ నగర్లో మా సత్తా ఏది చూపించుకోవాలి. ఈ మీటింగ్కి ముఖ్య అతిథిగా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు పెద్ద మనుషులు, ఆయనతో పాటు ఎంఐఎం అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు అసదుల్ ఓవైసీ గారు, మరియు కర్ణాటక వెళ్ళి సీఎం ఇబ్రాహీం గారు ఎంతోమంది ఈ మీటింగ్కి వస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ బిల్కి పూర్తిగా మేము వ్యతిరేకం చేస్తున్నాము. ఈ బిల్ వాపస్ తీసుకున్నంత వరకు ఖచ్చితంగా పోరాటం చేస్తాం. ప్రతి మైనారిటీది ఇది హక్కు ఉంది పోరాటం చేసేది, ఖచ్చితంగా పోరాటం చేస్తాం. మౌలానా ముఫ్తీ ఖలీల్ అహ్మద్ సాబ్ సభ అధ్యక్షులుగా ఉంటారు. మేము టౌన్లో ఖచ్చితంగా జిల్లాలో ఉన్న నాయకులు కానీ టౌన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడి ఈ మీటింగ్కి రావడానికి ఎట్లా రావాలి, ఎట్లా ఈ మీటింగ్ సక్సెస్ చేయాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ చేసుకోవాలి. మీరు కూడా అందరు కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పి మేము అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. మేము దాని తర్వాత మోసీ గారు మాట్లాడుతున్నాం. हमारे इम्तियाज़ साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन और साथ ही साथ हमारे अहमद सना साहब सदर जामिया मस्जिद और हमारे सेक्रेटरी साहब इमरान साहब और साहिल साहब, हमारे दानिश साहब जचल्ला और हमारे इंद्रेश साहब और हमारे और तमाम मेरे साथी। आज सबसे अहम ज़रूरत इस बात की है, महबूब नगर में जिस तरीके से एक अजीमुशान जलसा मुनक़्क़द किया गया है, जो 25 तारीख बरोज़ इतवार को रखा गया है, जिसको हमारे एमआईएम के सदर जनाब असदुद्दीन साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ के सदर जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जलसे को कामयाब भरपूर तरीके से बनाना है। मेरी एक ही इल्तिजा है तमाम महबूब नगर के मुसलमानों से, जो इस काले क़ानून को और जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड का जो गलत बिल लाया गया है, जो काला क़ानून से लाया गया है, जिसको पास किया गया है, इसको पुरज़ोर तरीके से हम लोग इसको कंडम करते हैं। और इस आइए और तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि ये जलसे को हर गांव से तशरीफ़ लाकर अज़ीमुश्शान तरीके से कामयाब बनाएं। और साथ ही साथ मैं हमारे इमरान भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो चंद बातें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टीआरएस पार्टी ऑफिस में जो रखा गया है, बॉयज़ कॉलेज ग्राउंड में 26 अप्रैल को जो अप्रैल में जो रखा गया था, अब वो पोस्टपोन होकर 25 मई को संडे रखा गया है। उस जलसे को कामयाब करने के लिए टीआरएस पार्टी भी भरपूर साथ देने के लिए खड़े हैं। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो बीजेपी गवर्नमेंट जो लाकर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो बाबा अम्बेडकर साहब का जो नियम ये कर जो है आज मुसलमानों के प्रॉपर्टियों पर जो कब्जा करने के लिए कोशिश कर रही है,
BRS पार्टी उसके लिए आज वो जो जलसा महबूब नगर में 25 मई को रखा गया है उसे कामयाब करने के लिए BRS पार्टी तैयार है इसको कामयाब करने के लिए। और तमाम महबूब नगर के लोगों से गुजारिश है कि 25 के दिन संडे आप तमाम मुसलमान आकर इस जलसे को कामयाब करें। और ये जवाब ऐसा देना चाहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट को कि महबूब नगर से पार्लियामेंट को आवाज़ जानी चाहिए कि मुसलमान इस बिल के ख़िलाफ़ है और आइंदा मुसलमानों के इसमें दखल-अंदाज़ी जो कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट वो लोग को सबक मिलना चाहिए। और इस जलसे को मेहमानी खुसूसी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो दानिश्वर है वो लोग जो है सो तशरीफ़ ला रहे हैं। खालिद सैफुल्लाह साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो MIM सदर और हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब भी इस जलसे में शिरकत करेंगे। इंशाअल्लाह इसे कामयाब करने की अपील जो BRS पार्टी आज प्रेस मीट रख के आप लोग को बोल रही है कि इस काले कानून को वापस लेने के लिए हम लोग ने आवाज़ उठाना है। आज महबूब नगर से आवाज़ जो जाएंगी पार्लियामेंट को कि इस बिल के ख़िलाफ़ तमाम मुसलमान है बोलकर। शुक्रिया। हम सब मिलकर मुत्तहिदा ज़िला से ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ जमा होकर इस जलसे को कामयाब बनाएं। न सिर्फ महबूब नगर बल्कि गदवाल, नारायणपेट, वनपट्टी, नारगुंदी, अफजा से भी जो है लोग यहाँ पे आएँ और आसपास बिलखुसूस जो आसपास की जो है गढ़चल्ला है और जो जैसे जौरगदरा यहाँ से भी लोग जो है ज़्यादा तादाद में जमा होकर इस जलसे को कामयाब। क्यों कि वक्त की ज़रूरत है, हम जो है अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। किसी ने क्या खूब कहा कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। आज वक्त आ गया है, करो या मरो का वक्त आ गया है। ये जो गवर्नमेंट है मरकज़ी हुकूमत के रोज़ाना दिन ब दिन कुछ ना कुछ कानून ला के मुसलमानों को यहाँ पे कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा वक्त हमारे सेकुलर कायदीन यहाँ पे जो है BRS के KCR साहब और यहाँ के मुकामी कायदीन के जलसे की तारीफ में आए हैं। तो हम सब का BRS पार्टी के कायदीन और तमाम मिलत इस्लामिया के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ और तमाम मकादीन के लोगों से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर इस जलसे को कामयाब बनाएं और हमारे इत्तेहाद और मुजाहरा फरमाएं। 25 मई रोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब महबूब नगर की तमाम सड़कें 22 कॉलेज ग्राउंड पर बंद होंगी क्योंकि महबूब नगर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़ेर निगरानी में एक अजीम शान जलसा वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो वक्फ कानून मरकज़ी हुकूमत इंडिया की हुकूमत अपने ताकत के बलबूते पर एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक क़ानून बनाकर उसको पार्लियामेंट में पास किया है, उसके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाजी जलसा किया जा रहा है। मैं तमाम मुत्तहिदा ज़िला के मुसलमानों से और तमाम मकातिब फ़िक्र के जमातों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, आप सरों का समंदर बताते हुए इस जलसे को कामयाब करें। हम मरकज़ी हुकूमत को ये पैगाम पहुँचाना है कि जो आपने क़ानून बनाया है हम उसके ख़िलाफ़ है, आप उस कानून को वापस लेने तक हम एहतजाज करते रहेंगे। इस तरह किसान भाइयों ने अपने एहतजाज करते हुए मोदी हुकूमत और इंडिया की हुकूमत को जो है किसान कानून को वापस लेने को मजबूर किया है, इसी तरह हम भी मजबूर करेंगे। लिहाजा मैं तमाम मुसलमानों से एक मरतबा ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस जलसे को कामयाब करें और इस जलसे के में उलमा इकराम के अलावा महबूब नगर के मौलाना नईम कौसर साहब रशादी है और जो जलसे के कन्वीनर है, उनकी तरफ से भी मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस जलसे को कामयाब करें। और हमारी पार्टी TRS की जानिब से भी इस जलसे BRS पार्टी की जानिब से भी इस जलसे की कामयाबी की और तारीख का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया, खुदा। 25 मई को महबूब नगर बॉयज़ जूनियर कॉलेज ग्राउंड में जो जलसा किया जा रहा है, उस जलसे में ख़वातीन के लिए ख़ास कर इंतज़ाम किया गया है, पर्दे का भी इंतज़ाम किया गया है।
मैं महबूब नगर के तमाम आवाम में खासकर ख़वातीन से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस जलसे में शामिल होकर जो है कामयाब करें। हम मुत्तहिदा होकर जो है जो मरकज़ी हुकूमत है उस जो बिल पेश की उस बिल को वापस लेने के लिए एहतजाज करना ज़रूरी है। एहतजाज करने से हर वो चीज़ हासिल होती है। जिस तरह से किसानों की बिल वापस ली गई थी उसी तरह भी जो है वक्त बिल्कुल वापस लेना पड़ेगा बीजेपी गवर्नमेंट को। ज़रूर हम एहतजाज करेंगे और सक्सेस करके बताएंगे इंशाअल्लाह। जितने भी तालिब इल्म हो चाहे कॉलेज से जितने भी लोग हैं स्टूडेंट्स हैं पेरेंट्स हैं हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि इस जलसे में आकर जो है कामयाब करें। और मुकामी जो है BRS पार्टी की तरफ से हम सारे जो है इसमें एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं सबको जमा करने का। और यहाँ के मुकामी जो है मिसेस श्रीवास गौर साहब ने भी कहा कि वो उनका भी बिल्कुल ताउन है, भरपूर ताउन है जलसे के लिए। तो सारे मिलकर हम काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है, हमारे हाईकमांड की तरफ से BRS पार्टी की तरफ से कि जहाँ भी वक्त अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ जलसा होता है उस जलसे में BRS पार्टी की तरफ से शामिल होकर बराबर हमारी भी नुमाइंदगी पेश करेंगे। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।